Hey, welcome everyone. So, in this video, you will learn about the three great plays of William Shakespeare. This is already clear to you that William Shakespeare was one of the great poet of the Elizabethan times. He was called a great Elizabethan poet and dramatist. So, William Shakespeare wrote many dramas. He was a great dramatist or a great playwright. So, in this video, you come to know about William Shakespeare's best play that was Romeo and Juliet. He wrote many plays. Mostly, he wrote many tragedies like Macbeth, Othello, Hamlet. All these are tragedies. And King Lear also called the tragedy Romeo and Juliet. So Romeo and Juliet basically also be called a love story between Romeo and Juliet, and these two also be called the protagonist of this drama. So one by one we will cover all these three plays by William Shakespeare in my video. So in this video we learn about Romeo and Juliet, that what was in the Romeo and Juliet play, and about what's the consequences, what's the result of the love story between Romeo and Juliet. So first, we will learn the characters of the play Romeo and Juliet. कि Romeo और Juliet play में कौन कौन से characters की बात की गई है. Here it is. First is that also it describes about the contrast or conflict between Montague and Capulet. So, Lord Montague, Lady Montague, his wife, Romeo, their son, the son of Montague and Lady Montague, and the name of the friends of Romeo is Benvolio and Mercutio. Balthazar also be called Romeo's servant. Lord Capulet and Lady Capulet, his wife. Juliet, the name of the daughter. So, this is clear to you that Romeo and Juliet story is not called a normal love story. It also be based on many like sufferings and many causes like that. It's clear to you in the starting of this uh, play, that is the contrast or a fight is also be continuing between Lady Montague, or we call Lord Montague, and Lord Capulet. So Romeo belongs to Montague, and Juliet, the lover of Romeo, is also be based on the like belong to the Capulet. So Romeo or Juliet also be like love to each other, but they belong to a different class, or they called the like daughter or a son of a enemy family, belong to an enemy family. So Benvolio and Mercutio called the Romeo's friends, and Juliet's nurse also be here. So Tiblet, one of the Capulet. Tiblet की भी बात की, that was the character belonged to the Capulet. Scalus called the Prince of Verona. Count Paris called the nephew of the prince. Means Prince of Verona जो Aeschylus उसका एक nephew था, Count Paris. दो man of God कहे गए हैं, that was Friar Lawrence and Friar John. So all these are the characters. So the first thing clear to you that there is a contrast between two, and a conflict between two classes, that was Montague, and the second is Capulet. Romeo belonged to the Montague family, and Juliet belonged to the Capulet family. So this is the called the contrast between all these things. After that, we will learn the story point by point. The Montagues and the Capulets were two important families in the city of Verona. सिटी का एक ही नाम है वेरोना. वेरोना एक ही सिटी है, वहाँ पर टू फैमिलीज़ की बात की गई है. देयर आर टू फैमिलीज इन द सिटी ऑफ वेरोना. फर्स्ट इज Montagues एंड सेकंड इज Capulets. देयर वॉज ए क्रुएल बिटवीन दम, और इन दोनों के बीच में फाइट चल रही थी, क्रुएल चल रही थी. कोई ईजी वो नहीं था कि रोमियो और जूलियट बिलोंग टू डिफरेंट क्लासेस, बिलोंग टू Montagues एंड Capulets, that their love story also be running in a very like peaceful or a comfortable manner. Both are belong to a different classes, and there was a quarrel between them, between their families as well. These quarrel was so fierce that even the servants hated each other. इतनी ज़्यादा क्वाल थी कि जो सर्वेंट्स थे ना, नौकर थे, वो भी एक दूसरे से नफरत करने लग गए थे. एंड दे फोट एंड कर्स्ड ईच अदर वेन एवर दे मेट. और जब भी एक दूसरे से मिलते थे, दे आर ट्राइंग टू लाइक स्टार्टिंग फाइटिंग विद ईच अदर एंड ट्राइंग टू कर्स्ड विद ईच अदर. The play tells of the love of Romeo and Juliet, and in this play, you also we come to know about the love between Romeo and Juliet. Romeo was the son of Lord Montague. It is clear to you that Romeo was the son of Lord Montague. लॉर्ड मेटेग्यू और कैपुलेट के बीच में फाइट थी. जूलियो जो दैट वाज जूलिया बिलोंग टू कैपुलेट्स, एंड रोमियो बिलोंग टू द Montagues. सो बोथ आर ऑल्सो बी हैविंग a conflict with each other. So the head of the Montague and the Lord Montague was called the father of Romeo,
also be called the head of the Montague family. Juliet was the daughter of the Lord Capulet. One day, two servants of the house of Capulet saw two servants of the house of Montague. एक बार क्या होता है, जो टू सर्वेंट्स होते हैं कैपुलेट के हाउस के, वो टू सर्वेंट्स को देख लेते हैं जो बिलोंग करते हैं हाउस ऑफ Montague से. मीन्स इट्स क्लियर टू यू. इन द प्रीवियस पैराग्राफ यू ऑल्सो बिकम टू नो जो सर्वेंट्स थे, अगर वो एक दूसरे को देखते थे, व्हेन दे सॉ ईच अदर दे आर स्टार्टिंग टू फाइटिंग विद ईच अदर एंड ट्राइंग टू कर्स टू ईच अदर. दे बिगिन टू फाइट. नाउ इसी चीज़ का वेट कर रहे थे. व्हेन दे विल सी टू ईच अदर देन वी विल स्टार्ट फाइटिंग एंड ट्राइंग टू स्टार्ट टू कर्स टू ईच अदर. बेनवोलियो, ऑल्सो बी कॉल्ड द फ्रेंड ऑफ रोमियो, saw them fighting. और बेनवोलियो ने एक तरीके से देख लिया था, बेनवोलियो ने, जो रोमियो के फ्रेंड थे, उनको फाइट करते हुए, मीन्स अपने सर्वेंट को उनके सर्वेंट से फाइट करते हुए. ही वॉज ए मैन हु लाइक पीस एंड क्वाइट, बट बेनवोलियो को तो केवल पीस और क्वाइटनेस पसंद थी, शांति पसंद थी. सो ही ट्राई टू स्टॉप द फाइट. तो उसने कोशिश की कि वो फाइट को क्या कर देगा, रोक देगा. कौन, किसने पहला कदम उठाया? बेनवोलियो ने. बेनवोलियो इज कॉल्ड द फ्रेंड ऑफ द रोमियो. व्हेन दे सी that they are fighting to each other, the servants related to Montague and the Capulet, they're trying to fight to each other, but Benvolio also be called the man of the peace and quiet. So he tried कि वो कोशिश करे इस फाइट को रोकने की. Try to stop the fight. Stop, he cried. Benvolio also be shouting in a very like shout manner. So he said, stop, don't do this. This is not the right way to fight. Like wherever you want to see to you see to each other, you are starting fighting and cursing to each other. This is not the good habit. Stop, he cried. But it was already too late. पर काफ़ी लेट हो चुका था. Chiblet, a hot-blooded Capulet, had arrived. अब एक कैपुलेट की तरफ से दो सर्वेंट्स तो पहले ही ऑलरेडी फाइट कर रहे थे. तो एक चिबलेट आता है दैट वाज बिलोंग टू ए कैपुलेट, बिलोंग टू द रोमियो, लाइक जूलियट्स बैकग्राउंड. सो ही वॉज कॉल्ड ए हॉट ब्लडेड. उसका काफ़ी गर्म खून होता है एंड ही वॉज इन ए वेरी एंगर मूड. तो वो वहाँ पर आ जाता है. द नॉइस एंड द शाउटिंग हैड ब्रॉट ऑफिसर्स अमंग दम ऑल. इतना ज़्यादा शोर हो गया था कि मतलब सभी ऑफिसर्स इकट्ठे हो गए कि व्हाट हैपेंड, यहाँ पर इतनी फाइट क्यों हो रही है, व्हाट्स गोइंग ऑन. लॉर्ड कैपुलेट एंड हिज वाइफ केम. अब लॉर्ड कैपुलेट भी आ जाते हैं, द फादर एंड मदर ऑफ द जूलियट, वो दोनों आ जाते हैं. एंड व्हाट हैपेंड वी सी, Lord Montague and his wife, the heads of the two families, drew their swords. अब जो हेड होते हैं दोनों फैमिलीज़ के, हेड मीन्स लॉर्ड Montague एंड लॉर्ड कैपुलेट. अब सर्वेंट्स ने फाइट शुरू कर दी. अब फाइट रुकी नहीं एंड फाइट को रोका गया, कोशिश की गई. चिबलेट भी आ गया, दैट वाज कॉल्ड द हॉट ब्लडेड पर्सन, बिलोंग टू कैपुलेट फैमिली. बट कोई मामला ठंडा नहीं हुआ. देन व्हाट्स गोइंग ऑन. अब हेड आ गए, हेड ऑफ द Montague, हेड ऑफ द कैपुलेट, मीन्स द फादर ऑफ द रोम एंड द फादर ऑफ द जूलियट. एंड व्हेन दे कम, तो बात आ गई स्वॉर्ड्स तक, तलवार उठा ली. दैट वाज कॉल्ड द रोमियो एंड जूलियट प्ले, दैट वाज बेस्ड ऑन द क्वीन एलिजाबेथन टाइम्स. तो उस टाइम पर स्वॉर्ड्स तो आम बात होती थी. दैट वाज कॉल्ड द वॉर पीरियड्स. सडनली द प्रिंस ऑफ वेरोना, प्रिंस इसिक्लस अराइव्ड. अब टू प्रिंस आ जाते हैं. दैट वाज फर्स्ट इज प्रिंस ऑफ वेरोना, सेकंड इज प्रिंस ऑफ इस्किलस अराइव्ड. अब सी व्हाट दे हैपेंड. अब ये दोनों प्रिंस आ गए, तो अब ये क्या नई कहानी बनाते हैं. यू मैन, यू बीस्ट. तुम जानवर हो, जानवरों से कम नहीं हो. All the human beings, when they are trying to fight to each other or cursing to each other, they are not less than the animals. Your quarrels spoil the quiet of our streets too often. आप जो लड़ाई कर रहे हो ना, you are starting quarreling to each other. तो आपकी जो लड़ाई है ना, that was spoil the quietness of us. तो वो हमारी शांति को ख़त्म कर रही है. Why you are behaving like a beast? You are a human beings, then behave like a human beings. तो आप एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से हेट करता है, लाइक स्टार्टिंग टू कर्सिंग टू ईच अदर एंड ऑल्सो भी लाइक स्टार्टिंग टू hate to each other, fight to each other. Whenever they see like starting to fighting or cursing, then the person not called a human being. It was less called animal. So he said, all these two prince called, you man, you beast. Why are you spoiling our peaceful environment? Why are you doing all these things? Now listen. अब he said कि ध्यान से सुनो. Now listen this thing. If ever you make trouble in our streets again, अगर तुमने दोबारा कोशिश की हमारे यहाँ पर ट्रबल क्रिएट करने की, यू शेल पे फॉर इट विद योर लाइफ. तो तुम्हें अपनी जिंदगियों से हाथ धोना पड़ेगा, तुम्हें अपनी लाइफ से पे करना पड़ेगा. नाउ दिस इज द लास्ट वार्निंग टू यू गिवन बाय टू प्रिंस सिक्लस एंड प्रिंस ऑफ वेरोना. So this is the right thing. Why they want to spoil the peacefulness environment of other persons? Why they are doing this thing?
यू शैल पे फॉर इट विद योर लाइव्स नाउ लेट एवरीवन लीव दिस प्लेस, अब सभी को ये प्लेस छोड़ देना चाहिए। ही सेड टू देम एंग्रली, उसने सबको गुस्से में कहा, और गुस्सा तो आएगा ही। दे वॉन्ट लाइक टू क्रिएट पीसफुल एनवायरमेंट एंड द अदर पर्सन ऑल्सो बी ट्राइंग टू create a quarrel or spoil the quietness of others. So this is not the right thing. Where is Romeo? Asked Lady Montague. Lady Montague said, Where is Romeo? Romeo कहाँ है? बेटा कहाँ है हमारा? I'm very glad he was not in his fight. मैं काफ़ी खुश हूँ कि वो आज इस फाइट में नहीं है. Like it is a very proud moment for me कि एक फाइट हो रही है और मेरा बच्चा उसमें इन्वॉल्व नहीं है. At that time he describes that he was the son of mine. वो मेरा बेटा है. वेरी अर्ली दिस मॉर्निंग सेड बेनवोलियो, बेनवोलियो कह रहे काफ़ी मतलब सुबह की बात थी। आई कुडेंट स्लीप, मैं नहीं सोया, सो आई वॉकड आउट इन टू द वुड्स ऑन द वेस्ट ऑफ द सिटी। और वुड्स मीन्स जंगल, दैट वॉज नॉट कॉल्ड वुड्स कि मैं लकड़ियों में गया था, मैं जंगल की तरफ गया था, फॉरेस्ट की तरफ गया था, वेस्ट साइड में सिटी में। देयर आई सा रोमियो, और वहाँ पर मैंने रोमियो को देखा था। ही वॉज अलॉन, वो अकेला था। आई वेंट टूवर्ड्स हिम, मैं उसके नज़दीक गया, बट व्हेन ही सा मी, जब उसने मुझे देखा, ही वेंट, वो चला गया, एंड हाइड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को छुपा लिया अमंग द ट्रीज, पेड़ों के बीच में। आई डिडंट फॉलो हिम, मैंने उसे फॉलो नहीं किया, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू फॉलो हिम, ही वॉज माई फ्रेंड। एंड वाई आई वॉन्ट टू फॉलो हिम, लाइक आई नो कि ही वॉन्ट्स टू हाइड हिमसेल्फ बिकॉज ऑफ मी, देन वाई आई वॉन्ट टू फॉलो हिम, मैं उसे क्यों पीछा करूंगा उसका, जब मुझे पता है कि ही वॉन्ट्स टू हाइड हिमसेल्फ एंड ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक टू मी, ही वॉन्ट आइसोलेशन, ही वॉन्ट टू सिट अलोन, देन वाई आई वॉन्ट टू डिस्टर्ब हिम। आई नो दैट ही वॉन्ट्स some private time, some privacy he wants. Romeo father, Lord Montague said. Lord Montague कहते हैं Romeo's father, that was called the Lord Montague. He was the father of Romeo. So Romeo's father, Lord Montague, said, Romeo has been seen on many mornings weeping alone. रोमियो को काफ़ी बार सुबह देखा गया और वो रो रहा था. Why he was weeping? Why he was crying? What's the reason behind this? But when the sun comes up, but जैसे ही सूर्योदय होता है, he goes into his room, वो अपने रूम में चला जाता है, and he shuts the day light out, और दिन में अपने रूम के दरवाजे को बंद कर लेता है. I am afraid for him. मुझे उसके लिए काफ़ी डर है. व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस? कि मॉर्निंग होती है, स्टार्टेड विपिंग, और जब सबके जागने का समय हो जाता है, ही वॉन्ट टू बी आइसोलेटेड हिमसेल्फ, ही वॉन्ट टू बी लीव अलोन. वाई ही वॉन्ट्स टू हाइड हिमसेल्फ फ्रॉम अस? वाई ही इज डूइंग ऑल दिस थिंग्स? सो द फादर ऑफ रोमियो कॉल्ड लॉर्ड मेंटेंगो, ही वॉज अफ्रेड ऑफ दिस थिंग्स. Look, here he comes, said Benvolio. Benvolio, the friend of Romeo, said, देखो वो आ रहा है. If you will go home, I will try to find out what his trouble is. अब आप घर चले जाइए तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरे फ्रेंड के साथ क्या चल रहा है. But why he is doing all these things? Why is behaving like this? What is the reason behind this? I want to find out his suffering. He did not have to ask Romeo many questions before he learned the truth. Benvolio, the friend of Romeo, never asked many questions in front of him. Like, as an practical example, I'm giving to you. Suppose there are two persons standing there, and both are friends, and one is very much disappointed, and the second is like happy. He wants his best friend, and he wants to know what's the reason behind his disappointment. And he said that he is disappointing, and he also will look like despair and sad for many, like 2 or 3 days. He's behaving in a very strange manner. So uh, when he creating many questions in a series in front of him, that why are you behaving like this, what happened, everything, all these things, so he feel very much disappointment, his disappointment also be increases. So Benvolio said, I'm not creating a series of questions in front of him, I'm not asking many questions from him, I want to know the truth, I want to get a practical example. I am not interested to learn about the theoretical answers from him. Romeo said, I love the beautiful Rosaline, but she does not love me. रोमियो कहता है कि मैं एक गर्ल दैट वाज रोसलाइन उससे काफ़ी प्यार करता हूँ, बट शी डजंट लव मी, वो मुझे प्यार नहीं करती. सो बेनविलियो हिज गुड फ्रेंड सेड, एवरीथिंग ही कुड टू हेल्प रोमियो, इट वाज ऑल यूजलेस. वो कहते हैं कि सब कुछ व्यर्थ है, पर वो कोशिश करेगा कि वो जितना भी पॉसिबल हो पाए रोमियो की मदद करे. फॉरगेट हर, भूल जाओ ना, डोंट थिंक ऑफ हर, इज सेट, क्यों सोच रहे हो उसके बारे में. यू कान टीच मी टू फॉरगेट वॉज रोमियोज आंसर. रोमियो कहता है, अरे मुझे ये मत सिखाओ ना, कैसे भूला जाता है. यू शुड लेट योर आइज लुक राउंड मोर फ्रीली, तुम अपनी आंखों को चारों तरफ फ्रीली तरीके से देखो, लाइक लुक एवरीथिंग अराउंड यू. लुक एट हर अदर ब्यूटीफुल वुमेन, कितनी ब्यूटीफुल वुमेन है यार चारों तरफ, उनको देखो ना तुम. वाई आर यू वॉन्ट कि रोजलिन मिले, रोजलिन मिले. लुक
अराउंड यू, अपने चारों तरफ देखो कितनी ब्यूटीफुल वुमेन है. दे ओनली शो मी हाउ मच मोर ब्यूटीफुल रोजलिन इज देन एनी ऑफ देम. तो वो ये शो करना चाह रहा है, मतलब लाइक दे ओनली शो मी हाउ मच मोर ब्यूटीफुल रोजलिन इज देन एनी ऑफ देम. क्या मतलब इन सब में केवल उसे रोजलिन ही दिख रही है कि जो ब्यूटीफुल है, क्या और कोई वुमेन उसे और ब्यूटीफुल नहीं लग रही? लाइक रोमियो ऑल्सो भी वॉन्ट्स टू डिस्क्राइब कि मुझे रोजलिन ही पसंद है. शी इज़ वेरी मच ब्यूटीफुल देन एनी ऑफ द अदर वुमेन. वो सभी वुमेन में सबसे ब्यूटीफुल है, सबसे प्रीटिएस्ट एवर शी इज़. बट हिज फ्रेंड ऑल्सो वॉन्ट्स टू डिस्ट्रैक्ट हिज माइंड कि अरे देखो तो ब्यूटी तो चारों तरफ है, और भी तो वुमेन्स, क्या पता तुम्हें कोई और वुमेन पसंद. मीन्स वैन हिज लव इज ट्रूथ, जब अगर उसका प्यार सच्चा है तो उसको एक ही वुमेन के अंदर ब्यूटी नजर आएगी. सो दिस इज द फैक्ट. सो इट इज़ क्लियर टू यू अबाउट द रोमियो एंड जूलियट. क्या पोएम क्लियर, दैट वाज द प्ले, आपको क्लियर हो रहा है अबाउट व्हाट इज इन द प्ले रोमियो एंड जूलियट? दैट वाज द इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट, अभी जूलियट तो नहीं आई है, रोमियो और उसके फ्रेंड के बारे में पता चल रहा अबाउट द लाइक some conflict between two class, that was Capulet and the um, Montague. इन ए स्ट्रीट इन वेरोना, वेरोना स्ट्रीट के बारे में बात की है जहाँ पर टू क्लासेस थे. दैट वाज काउंट पेरिस वॉज टॉकिंग टू लॉर्ड कैपुलेट, जूलियट्स फादर. अब जूलियट्स के फादर जो है लॉर्ड कैपुलेट, उनसे बात की जा रही है और काउंट पेरिस बात कर रहे हैं. पेरिस वॉज वन ऑफ द प्रिंस फैमिली, और पेरिस प्रिंस की फैमिली से बिलोंग करते हैं. वट डिड यू से टू माई विश टू मैरी जूलियट? आप क्या कहना चाहते हो मेरी जो विश है जूलियट से मैरिज करने की? पेरिस आस्क, पेरिस ने कहा, हु बिलोंग्स टू द प्रिंस फैमिली. शी इज़ टू यंग सेट कैपुलेट. कैपुलेट कह रहे हैं अरे वो बहुत यंग है अभी तो. लेट टू मोर समर्स पास बिफोर वी थिंक ऑफ हर एज रेडी टू बी मैरिड. 2 समर बीत जाने दो, मीन्स 2 साल तो और बीत जाने दो, तब देखेंगे उसकी शादी के बारे में. जूलियट के फादर कह रहे हैं शी इज़ माई ओल्ड चाइल्ड. वो भी मेरी मेरी शी इज़ माई ओनली चाइल्ड, वही मेरी एक बच्ची है. बट यू मे स्पीक टू हर एंड सी इफ़ यू कैन विन हर लव. तो तुम ऐसा करो, तुम खुद ही उससे जाके बात कर लो ना. कौन कह रहे हैं, मतलब मीन्स जूलियट के फादर बात कर रहे हैं किससे? पेरिस से, हु वाज बिलोंग टू द प्रिंस फैमिली, कि तुम उसका प्यार जीत सकते हो. आई एम गिविंग ए ग्रेट फीस्ट टू नाइट. मैं आज रात को एक अच्छा फीस्ट, अच्छा डिनर देता हूँ. एज आई हैव डन फॉर मैनी ईयर्स एट दिस टाइम ऑफ ईयर, जो कि मैं हमेशा से करता आ चुका हूँ. देयर विल बी डांसिंग, वहाँ डांस होगा. ऑल माई फ्रेंड्स विल बी देयर, मेरे सभी फ्रेंड्स वहाँ आएंगे. कम एंड बी वन ऑफ देम, आओ और उसमें से एक बनो. जूलियट विल बी देयर, जूलियट भी वहाँ होगी. ट्राई टू विन हर लव. कैपुलेट कॉल्ड सर्वेंट एट सेट. कैपुलेट ने एक सर्वेंट को बुलाया और कहा गो एवरीवेयर, हर जगह जाओ, इन वेरोना, वेरोना में, एंड फाइंड ऑल द पीपल हुज नेम्स आर रिटन ऑन दिस पीस ऑफ पेपर. इस पेपर पर जिन जिन लोगों के नाम लिखे हुए हैं उन लोगों को बुला कर आओ, उन ढूंढ कर आओ. आस्क देम टू कम टू डिनर एट माई हाउस टू नाइट. उन सबको कहो कि रात को मेरे यहाँ पर फीस्ट है, तो आप सब आमंत्रित हैं. देन ही वॉकड अवे विद पेरिस. तो वो किसके साथ चला जाता है? पेरिस के साथ. द सर्वेंट थॉट, सर्वेंट ने कहा था दिस इज़ गोइंग टू बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज आई कांट रीड. ये मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है क्योंकि मैं तो इलिटरेट हूँ. आई एम नॉट एबल टू रीड, मैं तो रीड कर नहीं सकता. एंड लाइक Lord give me this like work to read the names from this paper and ask that people to come at the feast tonight. So I'm not able to read, so this is very difficult to me. तो अब वो क्या करेगा? Let's see. Benvolio and Romeo came along the street. अब Benvolio और Romeo both are friends and they are very close to each other. वो street पर हैं. They were still talking about Romeo's unhappiness, and they continued to talking about why Romeo is unhappy. Romeo खुश क्यों नहीं है? Why? What's the reason? Please, sir, can you read? Said Capulet's servant, and he gave Romeo the list of names. So कैपुलेट अब कहाँ गए? देखो जूलियट के फादर का वर्क कौन कर रहा है? रोमियो कर रहा है. कैपुलेट के जो सर्वेंट हैं वो जाते हैं और रोमियो को कहते हैं सर क्या आप मेरे लिए पढ़ सकते हैं ये जो नेम दिए हुए हैं लिस्ट में? कैन यू हेल्प मी प्लीज टू रीड दिस? रोमियो रीड इट आउट फॉर हिम. रोमियो उसके लिए पढ़ लेता है. सिग्नर मार्चिनो एंड हिज वाइफ एंड डॉटर्स, काउंट एंड स्लीम एंड हिज ब्यूटीफुल सिस्टर ल्यूशिया एंड हेलेना, रोसेलिन, वेयर आर दे टू मीट. अरे इन सबको कहाँ जाने के लिए बुलाया गया? ये नाम क्यों रीड करवा रहे हो? एट डिनर एट माई मास्टर कैपुलेट हाउस नाइट टू नाइट. अरे मेरे कैपुलेट जो मेरे लॉर्ड है ना उनके घर पे रात को डिनर है, तो उन्होंने आमंत्रित किया, इन्वाइट किया है. इफ़ यू आर नॉट ए मोन्टेग्यू, अगर आप मोन्टेग्यू नहीं है, कम एंड ड्रिंक टू ए कप ऑफ वाइन विद अस ऑल. तो आप भी आमंत्रित है. इफ़ यू आर नॉट मोन्टेग्यू, इफ़ यू आर नॉट मोन्टेग्यू, सो रीड दिस थिंग. अगर आप मोन्टेग्यू, देखो इंसल्ट हो गई, अगर आप मोन्टेग्यू नहीं है तब भी आप आमंत्रित है. सो इट ऑल्सो भी क्रिएट ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपुलेट एंड मोन्टेग्यू. एंड
तो आप आ सकते हैं और एक कप ऑफ वाइन ड्रिंक कर सकते हैं हमारे साथ. But learn this thing if you are not Montague. This said Benvolio gladly. Benvolio ने ये बात कही क्या? In the chance I wanted for you, ये chance मिल रहा है, go there, अरे जाओ ना and compare your Rosalind with other beautiful women. और जाकर compare करो ना Rosalind को दूसरी beautiful women के साथ. She is beautiful to you now because you have met so few others. क्योंकि वो तुम्हारे लिए इसलिए ब्यूटीफुल है क्योंकि तुम दूसरों से तो बहुत कम मिले हो. गो एंड मीट टू अदर्स ना, दूसरों से मिलो तब पता लगेगा रोजलिन से भी ब्यूटीफुल लेडीज यहाँ पर हैं. दिस इज द point concept of the Benvolio, the friend of um, Romeo. I will go, ठीक है जाऊंगा, बट ओनली टू लुक एट रोसलिन, पर केवल रोसलिन को देखने, दूसरों को देखने नहीं जा रहा. द सन नेवर saw her equal since the world began. अब संसार जब से बना है तब से जो सूरज है, एक तरीके से ना, द सन नेवर saw her equal since the world began. जब से संसार बना तब से मैंने कभी भी रोजलिन को दूसरों के इक्वल नहीं किया. आई एम नॉट लाइक कंपेयर हर टू एनीवन. जूलियट वाज विद हर मदर. जूलियट अपने मदर के साथ थी, लेडी कैपुलेट के साथ, एंड अ नर्स के साथ, हु हैड ब्रॉट हर अप फ्रॉम ए लिटिल बेबी, जो हमेशा उसका ध्यान रखती थी जूलियट का. जब से वो छोटी सी थी ना, लिटिल बेबी थी, तब से उसकी केयर करती आई. अब नाउ शी इज़ वेरी मच यंग एंड ब्यूटिफुल. यू वर द प्रीटिएस्ट चाइल्ड आई एवर नर्स्ड, सेड द नर्स. नर्स कह रहे कि तुम बहुत अच्छी प्रीटिएस्ट चाइल्ड हो. इफ़ ओनली आई कुड लिव टू सी यू मैरिड, मैं बस ना तुम्हें शादी करते हुए देखना चाहती हूँ. देन आई वुड हैव एवरीथिंग आई विश फॉर, यही मेरा एक सपना है. दैट्स वॉट आई केम टू टॉक अबाउट. इसी के बारे में बात हो रही थी. सेड लेडी कैपुलेट ने कहा. लेडी कैपुलेट भी कहती है कि आई वॉन्ट टू सी हर मैरिज, मैं भी अपनी बेटी की मैरिज देखना चाहती हूँ. सेम द थिंग दैट नर्स सेड. जूलियट हाउ डू यू फील अबाउट गेटिंग मैरिड. जूलियट से पूछा गया, जूलियट तुम कैसा फील करती हो शादी करने के बाद. आई डू रियली वॉन्ट टू मैरी, क्या तुम शादी करना चाहती हो. आई हैव नॉट थॉट वेरी मच अबाउट इट, आंसर जूलियट. जूलियट कह रही है नहीं, अभी मैंने सोचा तो नहीं है वैसे शादी करने के लिए. यंगर गर्ल्स देन यू, तुमसे छोटी छोटी लड़कों की शादी हो गई है. हेयर इन वेरोना, वेरोना में ही देखो, आर ऑलरेडी इंपॉर्टेंट लेडीज एंड मदर्स. देखो यहाँ पर भी लेडीज और मदर्स. आई विल टेल यू नाउ. काउंट पैरिस होप्स टू विन योर लव. काउंट पैरिस, दैट वॉज द पर्सन बिलोंग टू प्रिंस फैमिली. ही वॉन्ट्स टू मैरी यू, वो तुम्हारा प्यार जीतना चाहता है. ही इज़ ए मैन, ऑलमोस्ट ए परफेक्ट मैन, क्राइड द नर्स. नर्स कह रहे हैं हाँ वो तो परफेक्ट मैन है. ही इज़ द फाइनेस्ट मैन इन वेरोना, वेरोना में सबसे फाइनेस्ट मैन है. शी हैव सीन. यू विल सी हिम टुनाइट एट आवर फीस्ट, मीन्स तुम रात को फीस्ट में तो उसको देख ही लोगी. मीन्स ये जो फीस्ट रखी गई है ये किसके लिए रखी गई है. विन लव ऑफ जूलियट, said Lady Couplet. Lady Couplet, the mother of Juliet. He needs a wife. He needs only yourself to make him perfect. Count Paris को एक वाइफ चाहिए. उनको he needs only yourself, उन्हें केवल तुम चाहिए जूलियट, जो कि उसके लिए बिल्कुल एक परफेक्ट चॉइस है. द इवनिंग केम, अब इवनिंग आ गई, मीन्स द पार्टी इज गोइंग टू स्टार्ट. रोमियो एंड हिज फ्रेंड बेनवोलियो पुट ऑन मास्क एंड वेंट टू द फीस्ट एट कैपुलेट हाउस. अब देखो बेनवोलियो और रोमियो भी अपने आप को हाइड कराए हैं एंड दे कवर्ड हिज देयर फेस विद अ मास्क, और वो कैपुलेट के हाउस में आ गए हैं. बट ऑल दे नो दैट दे बिलोंग टू ए एनिमी बैकग्राउंड. टिबलेट वॉज ए कैपुलेट. टिबलेट कैपुलेट हैं, ही नोज. ही हर्ड रोमियोज वॉइस एट द फीस्ट. अरे फीस्ट में तो टिबलेट ने रोमियो की वॉइस सुन ली. एंड ही नोज दैट रोमियो बिलोंग टू द एनिमी बैकग्राउंड. आई नो दैट वॉइस, सेड टिबलेट. टिबलेट सोच रहे कि अरे मुझे तो उसकी वॉइस पता है. ही इज ए मोंटेग्यू. अरे तो मोंटेग्यू है. वॉइस इज हियर, उसका क्या रीज़न है यहाँ पर आने का. हाउ डेयर ही कम्स हियर, उसके अंदर साहस कैसे हुआ यहाँ आने का. एंड ही कॉल्ड टू हिज सर्वेंट, फेच माई स्वॉर्ड. अब वो अपने सर्वेंट को बुलाता है. किस लिए बुलाता है. कि मेरी स्वॉर्ड लेकर आओ. स्वॉर्ड क्यों लेकर आओ. बिकॉज आई वॉन्ट टू किल दैट मोंटेग्यू. मोंटेग्यू की हिम्मत कैसे हो गई अरे यहाँ आने की. व्हाट्स द मैटर, आस्क लॉर्ड कैपुलेट. लॉर्ड कैपुलेट कहते हैं अरे क्या मैटर है टिबलेट. द मैन, दैट मैन इज अ मोंटेग्यू आवर एनिमी. अरे यहाँ पर एनिमी आ गया, मोंटेग्यू आ गया. इज इट यंग रोमियो, क्या वो यंग रोमियो. यस, टिबलेट सेड. लेट हिम स्टे. अरे उसे यहाँ रहने दो ना, लॉर्ड मोंटेग्यू सेड. लॉर्ड कैपुलेट सेड द पीपल ऑफ वेरोना से दैट ही इज़ ए गुड यंग मैन. क्योंकि वेरोना के लोगों ने कहा था कि वो काफ़ी अच्छा इंसान है, तो उसको क्या नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत है. आई नो दैट कैपुलेट इज़ आवर, मोंटेग्यू इज़ आवर एनिमी, एंड बट ही इज़ कॉल्ड ए गुड मैन. सो ही इज़ बिहेविंग लाइक ए जेंटलमैन. वो एक जेंटलमैन की तरह बिहेव करता है. देन वाई यू वॉन्ट टू लाइक किल हिम और गिव हिम सफरिंग.
टेक नो नोटिस टू हिम, उसकी तरफ ध्यान मत दो ज़्यादा। एंड डोंट लुक सो एंग्री, और ज़्यादा गुस्सा भी मत हो। एंग्री लुक्स आर नॉट राइट एट द फीस्ट, इस फीस्ट के टाइम पर एंग्रीनेस दिखाना अच्छा नहीं है। समथिंग वंडरफुल हैड हैपन टू रोमियो, रोमियो के साथ सब कुछ अच्छा होता है। ही हैड सीन ए गर्ल सो लवली, सो स्वीट एंड हैप्पी एंड गुड दैट ही डिड नॉट थिंक ऑफ रोजलिन एनी मोर। अब देखो, अब उसने इतनी सुंदर लड़की देख ली कि अब वो शायद, और इतना स्वीट, इतनी हैप्पी, इतनी गुड, और वो मतलब अब रोजलिन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेगा। नाउ ही वॉज ट्रूली मोस्ट डीपली इन लव, अब वो बहुत ही गहराई में प्यार में पड़ जाता है। एज ही एंड जूलियट शुक हैंड्स, अब वो जूलियट के साथ हैंडशेक करता है। ही सेड, कहता है, योर सॉफ्ट हैंड इज़ टू टेंडर फॉर माई रफ टच। अरे मेरे रफ टच के लिए तुम्हारे जो हैंड्स तो कितने सॉफ्ट और कितने टेंडर हैं, कितने नर्म और मुलायम हैं। बट माई लिप्स आर रेडी टू हील योर जेंटल हैंड विद ए किस। पर मेरे जो लिप्स हैं ना, वो एक तरीके से क्या है, आपके जेंटल हैंड को किस करने के लिए काफ़ी हील हो रहे हैं। तो means he also be describes about this thing that he loves Rosalind in the one side, when he sees Juliet, then he also be fell in deeply love with her, and he starts to propose for a kiss on her hand. He kissed her hand. अब रोमियो जूलियट के हैंड पर किस करते हैं. You have lips too, he said. वो कहते हैं तुम्हारे पास लिप्स भी, यू हैव लिप्स टू। जूलियट फाउंड दैट शी वॉज इन लव विद हिम टू एंड दे किस्ड। जूलियट को पता लग जाता है शी इज ऑल्सो बी लव विद रोमियो एंड शी किस्ड रोमियो। सो इन द फीस्ट ही ऑल्सो कम टू नो दैट शी लव्स ए मैन called Romeo, and Romeo also be find his beloved at the feast of the couplets, not in his background feast. So he also comes to know that he loves Juliet too much. Not Rosalind anymore. The nurse came in. अब नर्स आती है. Your mother wants to speak to you, she said to Juliet. Juliet को कहते हैं तुम्हारी मदर तुमसे बात करना चाहती हैं. Who is her mother? asked Romeo. Romeo कह रहे कौन है इनकी मदर? Her mother is Lady Capulet. अब वो बताती है कि अरे इनकी मदर तो Lady Capulet है. It was a terrible thing for Romeo to hear. अरे अब तो ये टेरिबल थिंग हो गई कि मैंने किससे प्यार कर लिया, मैं किसके प्यार में पड़ गया, मैंने किसके हैंड पर किस कर लिया. लाइक the girl belonged to the different class, belonged to our enemy class, that was the cuplet. Oh my god. It was a terrible thing. Everyone began to leave and Romeo went with the others. सभी चले गए और रोमियो भी चला गया. जूलियट वॉच देम गो, जूलियट ने भी देख लिया उसे जाते हुए. कम हियर नर्स, नर्स को कहा इधर आओ. हु इज़ दैट जेंटलमैन ओवर देयर? कौन है वो जेंटलमैन जो जा रहा है? गो एंड आस्क हिज नेम, जाओ ना उसका नाम पूछो. द नर्स केम बैक एंड सेड, नर्स आई और बोली, हिज नेम इज़ रोमियो, उसका नाम रोमियो है. हिज ए मोंटेग्यू, वो मोंटेग्यू द ओनली सन ऑफ योर ग्रेट एनिमी, आपके महान दुश्मन का एक लौता बेटा. So now this is the terrible thing for the Juliet also. So this is the first part we can say about the play Romeo and Juliet. The second play, the second part of this play, the further story we will discuss in my next video. So please comment on this video, describe that the way of my teaching, and give me suggestions also, and also describe that give me remarks, give me comment on my comment section, and describe that how you like it this video. Subscribe my channel, like my video channel, and share this video also. So thank you so much.